Let us stand for the word. हम सब खड़े हो जाए परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। इज़ाया 48 में लिखा हुआ है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. So this morning we are here because the word of God will stand forever. आप सब बैठ जाएं। Isaiah 43, 18 और 19 इसी से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do not perceive it. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. And then the second reading is from Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Great is your faithfulness. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do not perceive it. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. God is doing a new work. In the dry and weary land, He is going to make a river. It will rain in that place. The vegetation will come. वो सूखी हुई भूमि जिसमें कुछ नहीं होता है, वो कहता है कि मैं नया काम करूंगा, और यदि आप करने को देगा वो करेगा। हम सूखी नहीं है। इज़राइल में सबसे भारी इरिगेशन है। Israel is a desert country. यदि आप वहां पर जाओगे और आप सुना होगा, गूगल करके भी देखिए, इज़राइल का वो भूमि जो सूखी भूमि है उसमें कितना उपज होता है। वहां के तरबूज को आप देखोगे, बनानास को देखोगे, कोई भी फ्रूट है। Even India being such a big country, they go and learn from Israel. They go and learn from Israel. And the Lord said, what did He say? I'm going to do a new thing. He has started a new thing even in our lives. We won't be any more dry and weary. Come out of it. Look to the Lord. And you will be sustained.
परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया काम को करता है। ये वर्स हमें क्या बताती है? It reminds us that God is always at work, bringing renewal and transformation in our lives. He is always at work. साल बदल गया, परमेश्वर नहीं बदला, वही परमेश्वर है। नंबर्स बदल जाता है, लेकिन समय नहीं बदलता है। वही दिन जो 24 में था, आज भी वही दिन है, कल भी वही दिन रहेगा। It's only numbers what has changed. And God is telling each one of us this morning, this first Sunday of the month, that He is about to do a new thing in our lives. New things in our church life. Something good is going to happen. Only if we trust in Him and take His word in our heart. इसी कारण मैंने आप सबों को खड़ा कराया था कि पत्ते मुरझाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं गिरता है। उसका वचन अटल है और उसका वचन अटल रहेगा। Heaven and earth will pass away, His word will never pass away. परमेश्वर का वचन स्थिर है और स्थिर रहेगा, और हमें उस पर विश्वास करना है और उसे अपने अंदर लेना है। ऐसा हम लोग ढीला डाला मसीह नहीं रहे। Let us be committed Christian. Let us be faithful Christian. Let us take the word of God and say, yes, it is written. It is written that यीशु ने शैतान की मुकाबला किया और उससे कहा, it is written. Praise the Lord. कोई भी समस्या में आप आओगे तो आपको खड़े होकर यही कहना है, it is written, कि वचन है, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरा सामर्थ है और मेरा मदद मेरे परमेश्वर से आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास करता हूं और परमेश्वर के वचन को लेता हूं। Fight with the word. It is written for you and for me. And the word of God is powerful. It has got two edge. दोनों बगलों का आता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की नाई, वो दोनों बगल का होता है, और परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, उस वचन को आप रखा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया काम करने को है। कई बार शायद आप मुझसे सुना होगा, एक लड़का आया मेरे पास और मुझसे कहा कि अंकल जी, he was only about 22 years old and he had a prophecy. उसका एक prophecy आया कि he is going to become a millionaire. And the Lord did great work in his life. And in his late 30s, he became a multimillionaire. He kept that word, he kept that prophecy. If the prophecy has come to you, it will come to pass. You have to believe and you have to take it in your heart. Yes, Lord, I believe. I believe. यदि आप कहोगे, oh, I heard this before. I heard this before. Sometimes we take it very lightly. But take it seriously. My God is not dead. They killed him. And then they thought that he is dead. He died, but he rose again. And is coming back for you and for me. He is saying yesterday, today, and forever. He will never change. He is going to do a new thing in your life this new year. God called his people to forget the former things and look forward to the new things he is doing. Just as the children of Israel, they needed to trust God's promise of deliverance.
the children of God, when Moses took the word to them that we have to leave Egypt and God is going to take us to the promised land. They haven't seen the promised land, but they believed and they moved by faith. You haven't seen the blessing ahead of you, but there is a future and blessing for you. Can you step out in faith? क्या विश्वास से आप निकल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आशीष को रखा हुआ, मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं चलूंगा। इजरायली उठे और चलने लगे। हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है पाने के लिए। Sometimes we don't want to leave our comfort zone. इजरायली लोग भी कुछ थे ऐसा, ना things are alright यार, मिस्री में things are alright, है तेरा परेशानी पर यही रहेंगे, अभी तो देखा नहीं, क्या परमेश्वर ने वादा किया है वो तो हम देखे नहीं। मौजस में भी थोड़ा डाउट था, लेकिन परमेश्वर मौजस के साथ रहकर वो लाठी से परमेश्वर ने मौजस को संभाला। उस लाठी से परमेश्वर ने मौजस से बातचीत किया। आज वो लाठी परमेश्वर का वचन है। ये वचन जो कुछ बताता है इसको सही रूप से हम लोग ग्रहण करें और यही वचन हमें पार लगाएगा, यही वचन हमें मदद करेगा। We too must trust Him to lead us into a brighter future. We have not reached the promised land yet, but look forward. Look forward for the eternity. Look forward for the second coming of Jesus Christ. He is coming very soon. He will take you and me. Look at the signs of the world. सारी चिन्हों को देखकर हमें बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसी के ओर हम लोग नजर उठाए और ये हम अभी तक वो प्रोमिस्ड लैंड में पहुंचा नहीं, अभी हम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचा है, लेकिन इजराइलों की तरह हम वो राह से चलते हैं जो राह पतला है। यदि चौड़ा मार्ग को आप लेकर चलोगे, धूमधाम नाचने कूदने दुनियादारी में रहोगे, तो स्वर्ग तक नहीं पहुंचने पाओगे, क्योंकि तू गलत राह में है। आपको पतले राह से संभाल कर चलना है, दुनियादारी में नहीं, दुनिया को लेकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर हम आगे बढ़ते रहे। एंड नथिंग विल स्टॉप अस फ्रॉम reaching to heaven. एक नया चीज पाने के लिए हमें क्या करना है? Release the past. Point number 1. Release the past. Stop dwelling on what cannot be changed. Holding into past failures or regrets can paralyze us spiritually. Leave behind the old and focus on new. Stop dwelling on what cannot be changed. Sometimes we dwell in things which cannot be changed. वो नहीं हो सकता है, ये नहीं चेंज हो सकता, वो माइंडसेट नहीं रखी, लेकिन विश्वास से हम लोग निकले, वो चीज को हमको छोड़ना है। एक बहुत पुरानी फिल्मी सॉन्ग है, पाने के लिए हमें खोना है, कुछ हमें खोना है पाने के लिए। We have to leave something to get new thing. Don't hold on to it. उसको पकड़ कर हम नहीं रखें। We focus on new thing. Don't look back to Egypt. बहुत से इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे रास्ते में जब आए, मौजस से कुड़कुड़ाने लगे, और जो कुड़कुड़ाए वो प्रोमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंचा। मेमोरी,
मैं 20 साल से गिरजाघर आता हूं, पादरी से कई बार मैंने इस वचन को सुना, ना नहीं। Don't let Satan plant that seed in your mind. परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। परमेश्वर सब कुछ अपने समय के मुताबिक करता है, हमारे समय के मुताबिक नहीं करता है। इसी कारण परमेश्वर ने कहा हम इंसान को 70 to 80 years, यदि हेल्थ अच्छा हो तो और आगे बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर इंसान को जानता है, अच्छे से जानता है। आदम जब से धोखा दिया तब से परमेश्वर अच्छे से जानता है। आदम ने परमेश्वर ने आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया रहा कि बीवी को संभाल कर रखे, लेकिन आदम बीवी को नहीं संभालने पाया। जहां पर बिच्छू रहते हैं वहां पर उसको भेज दिया, और बिच्छू सिर्फ हव्वा को नहीं काटा, वो आदम को भी काट दिया। आदम उसको रोक सकता था, बीबी नहीं वो फल वो नहीं छुए, लेकिन मियां लोग कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। आज कमजोर होने के कारण सारी यूरोपियन वर्ल्ड में इक्वल राइट। I respect you sisters, I respect you mothers, I respect you daughters, but God has created us in a different way. Maybe my hierarchies, my denomination can take away my credential, but I stand on the word of God. कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर क्या बताता है। With all due respect to every lady, love your husband, submit yourself. Don't let Satan come and deceive you. Satan is very cunning in our spiritual work. Satan will try to use weakness, कमजोरी को देखेगा, जहां कमजोरी वहां गिराएगा। परमेश्वर की ओर देखो, यीशु की ओर देखो और आगे बढ़ो। Bible tells us कि looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. जो इजरायली लोग पीछे घूमकर देखा, पीछे कहने लगे कि इजराइल के सब इजिप्ट का सब्जी बहुत स्वाद था, वहां पर हमको लहसुन मिलता था, तरह तरह के मसाला मिलता था, और आज जंगल में ला दिया, यहाँ पर क्या मिलता है? सूखी रोटी और पानी। ऐ मूसा, क्या किया तुमने? And sometimes we sit in the church and we murmur because we are not getting what we want to get. We are only getting what God wants to give to us. That is different. परमेश्वर जो चाहता है वही परमेश्वर देता है। I cannot be like you, you cannot be like me. We are created in different way. Your thinking and my thinking is different. So is God's thinking and our thinking. बाइबल क्या बताती है? God has got better things for you and for me. He is going to do new things in your life. Let this year be a year of blessing for AICC. Let this year be a year of blessing to you, to every one of you. Blessing in your life personally, blessing in your family, blessing in your children, blessing in the body of Christ. Let the Lord do the new thing in our church, in our lives. Hallelujah. परमेश्वर को मौका दे। पीछे घूमकर यदि आप नहीं देखोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यदि पीछे मुड़कर देखोगे, पीछे के बातों को सोचोगे, और वो सब जो इजराइल में यानी इजिप्ट में मिलता था, दुनिया में जो कुछ मिलता था, नाच गाना बजाना धूमधाम करना, दुनियादारी, जैसे दुनिया चलता है वैसे हम भी चले। Unfortunately, the church is compromising not to the word but to the world.
Sorry to say that. Why church is failing today? Because they want to please man, not to please God. That is the difference. Let us become the pleasers of God, not of man. कि परमेश्वर के खुशी करने वाले बने, इंसान के खुशी करने वाले ना बने। क्योंकि शैतान कनिंग है, वो इंसान के दिमाग को बदलता है और दुनियादारी में, दुनिया में ऐसे ऐसे चीजों को लाता है जो परमेश्वर से घृणा है, जिसको परमेश्वर नहीं चाहता है, which is abomination to the Lord. But unfortunately, the world, the church is getting world. Church is getting world inside. दुनिया को हम लोग अंदर लाते हैं, हमें दुनियादारी को दूर करना है. Don't look back. Remember Lot's wife, लूत का पत्नी, क्योंकि गाना गुरिया था वहां पर सोडम और गमोरा में. यही एक परिवार को परमेश्वर वहां से निकालता है और उनको बताता है कि सोडम और गमोरा को मैं नाश कर दूंगा, और वो आग से नाश होता है. लोग के परिवार को क्या बताया? पीछे मुड़कर नहीं देखना. डोंट लुक बैक. क्रिश्चियंस डोंट लुक बैक. इवन यदि कुछ दुख हो दिया, don't go back to collect it, because God is going to do a new thing in your life. This is a year of blessing. Hallelujah. This is a year of blessing. As Chinese, they have New Year. Sometimes it's a year of dragon, sometimes it is year of cat, sometimes it's a year of chua or what and what. But we as a church, this year is going to be a year of blessing. Amen. It's going to be a year of blessing. Oh, praise God. Hallelujah. Year of blessing. You have to let go. Don't look back. नहीं तो तू भी नमक का कमला बन जाओगी. लूत के वाइफ काय तुम के देखिस? Because इंडिया से सुंदर सुंदर साड़ी लाई जा, सलवार कमीज. ये डिफरेंस है मैन और लेडीज में. मैन लोग नहीं लुक देखता है कपड़ा कैसा है उसका, लेडीज बहुत ज्यादा देखती है. फिर क्या होता है? किसी ने कहा कि यदि आपका बीबी बीमार हो तो उसे तो शॉपिंग लेकर जाए. और कहाँ ले जाए? साड़ी के दुकान. यदि वहां पर भी इसका तबीयत नहीं ठीक हो तो उसको लेकर जाए सोनार के पास, जहां पर सोना बेचता है. यदि वो सोना देख लेगी और तो उसको लेकर दे दिया, बीमारी चला जाएगी. It's just a joke. Amen. Hallelujah. The Bible tells us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Look to Jesus, the man of pain and sorrow. वो व्यक्ति जिसमें दुख, जिसमें पीड़ा है, उसके ओर देखो. Look to the man. Which man? The man of pain and sorrow. And we learn from him. यीशु क्यों कहता है कि यीशु को देखो? For the joy. He bore all sorrow, pain, even crucifixion. Why? Because of the joy with the Lord set before him. परमेश्वर जो आनंद उसके लिए रखा था, उसके कारण ये सब दुखों को सहन लिया. यदि हम वो आनंद में प्रवेश करना चाहता है, यीशु के ओर देखें और यीशु के तरह दुख उठाकर वो आनंद को प्राप्त कर ले. अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, हम लोग आधे रास्ते में हैं. थोड़ा सहे लो. आशीष को देखने के लिए आपको सहना है, आपको सहना है.
Hebrews 12:1-2 आप पढ़ सकते हैं। There is joy set before us. Endure the pain and move forward. Dwelling on past hurts can make us miss miss out on the blessing He has prepared for us. Dwelling on the past hurts will make us to lose our blessing. वहीं पर लेते तो रहोगे. And first thing is, if you haven't got forgiveness in your heart, forgiveness to those who have hurt you. If you dwell there, you will not move forward. बाइबल कहता है कि यदि हम अनाथ बातों को अपने अंदर सोचेंगे, बुरे विचार को रखेंगे, हमारी दुआ परमेश्वर नहीं सुनेगा. हम माफ करें क्योंकि हमें माफ किया गया है. Every believer, every Christian, every born again person, you must forgive because you are forgiven. If you are not forgiven, then don't forgive. But if you know that you are forgiven, we have to forgive. And that's the prayer Jesus taught us. यीशु ने यही दुआ हमको सिखाया. मैंने सुना, यहाँ पर नहीं, कई जगह पर बिलीवर्स साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. Hey, this is not God's way. हम कभी परमेश्वर के राज में वारिश नहीं होगा. You want to see blessing this year? Let it go. Let it go. Don't hold on to it. Forgive one another. Jesus, for forgiveness, He gave His life. And that's not what I'm asking you. अपना प्राण नहीं देना है. यीशु अपना प्राण को दे दिया हमें क्षमा करने के लिए. और जब हम यीशु के सच्चे भक्त हैं, हम उसकी सच्चे बच्चे हैं, तो हम यीशु की नाई बनेंगे, हम यीशु की तरह बनेंगे. अनफॉरगिवनेस लेकर हम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे. हम लोग क्रिश्चियन का टैग लगा सकते हैं, बेज मिल जाएगा आपको, दुनिया दे देगा बेज. क्या बोलते हैं, हमारे जो संस्था होते हैं हायरार्कीज, वो भी हमें सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं होगा. ये सर्टिफिकेट लेकर जाओगे और परमेश्वर से कहोगे कि ACC ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन चर्चेस ने मुझे एक क्रेडेंशियल दिया है, लॉर्ड विल से आई डोंट नो यू. वो नहीं काम योग है. काम योग क्या है? जब तूने क्षमा किया, क्योंकि तू क्षमा किया गया है. आमीन. क्योंकि तुझे प्यार किया और तू भी एक दूसरे से प्यार कर. Two very essential things in the life of a Christian. Love one another as I have loved you. Forgive one another as I have forgiven you. God is love. और कुछ नहीं, परमेश्वर प्यार है. हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. Greatest commandment, love the Lord thy God with all thine heart, mind, soul and body, and love thy neighbor as thyself. That is God's commandment. Nothing new. मैं कथा कहानी नहीं बताऊंगा, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ. Maybe I'm not a good preacher, I don't care. But I'll stand upon the word of God and I'll tell you the truth. सच्चाई क्या है? मैं सच्चाई प्रचार करना चाहूँ. प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा को दिया जो कुर्बान हुआ.
हमारे क्षमा के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, छोटा बना, उसके ऊपर निंदा किया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसे मारा गया, दुर्दशा में लाया, फिर भी क्रोस पर चढ़कर वो ये बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। If you want that blessing, my dear brothers and sisters, release the past. जो कुछ गलती हमसे हुआ उसको भूल जाए, वहीं पर नहीं रहे। मैं यदि आकर एंड्रू से कहूं कि एंड्रू प्लीज फॉरगिव मी, यदि वो मुझे फॉरगिव नहीं किया, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज हिज प्रॉब्लम, इट बिकम्स हिज प्रॉब्लम। यदि आप आकर मुझसे कहोगे पास्टर फॉरगिव मी, इफ आई डोंट फॉरगिव यू, you are free in God's sight and I am with guilty conscience. हम जिंदगी भर वो गिल्टी कॉन्शियस में रहेगा, हर समय मेरे दिमाग में वो मारा जाएगा। Andrew came to you for forgiveness, you haven't forgiven him. He forgave when we are supposed to forgive. Then we are going to see good and great things in our life and in the life of the church. Hallelujah. These are the good things God is going to do for us. So, dwelling on the past hurts can make us miss out on the blessing He has prepared for us. He has prepared for us. As we enter into new year, forgive others who have hurt you and move forward. Unforgiveness will not let you move forward. It will bother you. Many are not healed because of unforgiveness. Many of us, we are suffering somewhere in our life. Ask yourself why. हे प्रभु, मैं तो रोजा रखता हूँ, मैं उपवास करके प्रार्थना करता हूँ, मैं चेंज मिस नहीं करता हूँ, क्यों मुझ पर ये तकलीफ है? शायद किसी जगह पर हमने किसी को चोट पहुंचाया और फिर जाकर हम उसे सुला नहीं किया, उसे हम जाकर नहीं बोला कि हे ब्रदर, आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, आई एम सॉरी दैट आई हैव हर्ट यू, फॉरगिव मी। लेट द बिटरनेस गो, let the bitterness go. कड़वापन जाना चाहिए. Second thought is embrace God's new work in our life. Embrace God's new work in our life. Steps to embrace change. Spend time in prayer and word and discern God's direction. Let go of destruction of old habits that hinder our growth. Philippians 4:8 says, whatever is true. Let us read Philippians. क्या हमें करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? ये काम को करना है. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, कोई हिंदी में पढ़ना इसके बाद. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. कोई पढ़ेगा हिंदी में? ये भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. सत्य बातों, अच्छी बातों पर,
बाइबल कहता है साम चैप्टर 1 में, ठट्टे करने वालों की मंडली में नहीं बैठो, वहां से उठकर चले जाओ। जब कोई आकर मुझसे कहता है कि वो भाई वो बहन चर्च के विषय में बोलता था, मैं बोला तू क्या किया, तू क्यों बैठ कर सुनता था? तू वहीं पर उसको बोल देता कि ब्रदर और सिस्टर, आई डोंट वांट टू हियर दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। बात सब कट जाता, मेरे तक नहीं आएगा। यदि कभी भी तू लेकर आओगे, मैं आपसे वही बात बोलूंगा। धन्य वे जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, ना उनकी संगति करता है, क्योंकि आत्मिक रूप से हम सूख जाएंगे। डोंट गिव डेविल अ चांस। चर्च, डोंट गिव डेविल अ चांस। शैतान को मौका नहीं दे हमारे जीवन में काम करने के लिए। हम पवित्र लोग हैं, हम पाक लोग हैं। We have been washed by the precious blood of Jesus Christ. कई बार प्रभु हमें धोएगा। अनुग्रह का वक्त चला जाएगा और तू भी नरक चला जाओगे। परमेश्वर की अनुग्रह अभी है, उसकी दया हम पर है, उसकी प्यार हम पर है। अभी वो समय है तौबा करने का, अभी वो समय है बदलने का। हम बदल सकेंगे, बदल जाए, ताकि ये साल हमारे लिए आशीष का साल बन जाए। Amen. This year will become a beautiful year in our life and in the life of the church. I cannot do it alone. We all have to do together. That's why I'm calling you for 21 days of fasting and prayer. Steps to embrace changes. Spend time in prayer and word and desire God's direction. It requires faith. It requires faith. Embrace God's new work will require faith. Hebrews 11:1 says that faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith is confidence. एक निश्चय है, ये होगा, और हमारा आशा होना चाहिए। Faith आशा, अनदेखी चीज। हमें विश्वास है, आप लोग सब गिरजाघर में आया, आप लोगों का विश्वास था कि आज संडे 9:30 गिरजाघर रहेगा, 6 सर्विस यहाँ पर रहेगा। बड़े आराम से आप आए और आकर कोई सीट को देखा नहीं कि ये सीट टूटा है कि कैसा है, लेकिन आप आकर आराम से बैठ गया, क्योंकि आपके पास आशा है, विश्वास है कि ये सही है, ये सीट मुझे रोक लेगा, और आराम से आप बैठ गए। ऐसे ही जब हम अनदेखी परमेश्वर के पास आते हैं, हमें विश्वास से आना है और निश्चय जानना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के बीच में है। आमीन। वो हमारे बीच में, हमारे साथ है। So we trust. It requires faith. It requires faith. What we hope for and assurance about what we do not see. We haven't seen heaven, but we will. हम देखेंगे स्वर्ग को। Don't murmur. कुड़कुड़ाओ नहीं, हमें जंगल से जाना है। As children of Israel, they went through desert. They went through wilderness. They went without food and water. It's just for a season. वो थोड़े देर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष में लेकर जाता है। आज दुनिया की आंख इजराइल पर क्यों लगा हुआ है? Why so many Arab countries there? Yeah, they want to grab Israel because it's a land of milk and honey. It's a land of blessing. जो नहीं करने पाते अपने मुल्क में, वो चाहते हैं कि इजराइल को ग्रेब कर ले, ताकि उनसे कुछ मिल सके। It's a land of milk and honey. That's a promised land, and we are on the promised land. Hallelujah! We are on the promised land, and we will make it. हम लोग वहां पहुंचेंगे। हम सब कितने भाई बहन जो हम लोगों के साथ थे आज नहीं है, जो स्वर्ग उठाया गया,
वो वहां से देखते हैं और परमेश्वर की जय जयकार करता है. They are in a better place than you and me. Trust in God's promise. God's plan is always good for us. In Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plan not of evil, but of future and hope. He had plan. He had better plan. When they came to the Red Sea, God had better plan. He parted the Red Sea. नील समुद्र में उसने राह को बनाया. He knows the plan. He knows our future. But when we see with our eyes, we say, no, no, no. पादरी कहाँ पर तू ला दिया? किस जगह पर ला दिया? क्या ये भूखे प्यासे रहना? क्या बात करते हो? हम नहीं रह सकते, हमारे बच्चे नहीं रह सकते. But God has got better plan for you and for me. Who can read the mind of God? And they came to the Red Sea. नील समुद्र के पास आया. क्या कहा? ए मूसा, वही लाठी. समुद्र के बोल देखा, दो भाग हो गया. वायु में परमेश्वर ने हवा को भेजा और सूखे और इजरायली निकल कर कैनान देश में पहुंच गए. We serving the same God. We're not serving different God. We are serving God of Abraham, Isaac, Jacob, Jesus. We serving the same God, the God of yesterday, the God is saying today. हम उसकी आराधना करते हैं और जैसे इज़राइल पार कर लिया, हम भी हर एक परेशानियों से पार हो जाएंगे. Let this year be a year of breakthrough. We'll come out from lot of pain and suffering. दुआ में लगा रहो और परमेश्वर पर विश्वास रखो. Trust in His promises. उसके वादाओं पर विश्वास रखो. If one door closes, God will open another door. एक दरवाजा बंद होगा, परमेश्वर आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल देगा. मैंने कई टेस्टमनी को सुना इसी गिरजाघर में कि कैसे ये बंद हुआ, दूसरा खुल गया. हम वही परमेश्वर की सेवा करते हैं जो किसी की पक्षपाती नहीं करता है, सबको एक तरह देता है. जब परमेश्वर ने भाई को आशीष दिया, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा. जब परमेश्वर ने इस भाई के एक दरवाजा जो बंद हो गया था, दूसरा दरवाजा को खोला, वो परमेश्वर आपके लिए भी खोलेगा. Trust in His promise. It's going to happen to you. God is God of possible. God is God of possible. If you need healing, keep praising. We had a beautiful testimony from Ivan last New Year's Eve. Ivan यहाँ बैठा है. Ivan का कान नहीं सुनाता था. उसको मीटिंग्स में भी बैठना पड़ता और बड़े मुश्किल से वो सुनता है. लेकिन उसकी भरोसा जो था परमेश्वर पर था. कई बार वो प्रयास कराया होगा और शायद उसी इंस्टेंट उसको हीलिंग नहीं मिला. लेकिन गिरजाघर में, यही गिरजाघर में बैठकर जब प्रेज एंड वर्शिप था, वो प्रेज एंड वर्शिप करता था, उसका कान खुल गया. उसका कान खुल गया. His testimony last Tuesday night, God brought that healing. There is power in praying, in praising God. When you worship with your heart, don't with your mind. नहीं सोचो कि लोग क्या बोलेगा. हम लोग के सुनने के लिए वर्शिप नहीं करते हैं. हमारा वर्शिप स्वर्ग को जाना चाहिए, परमेश्वर को सुनना चाहिए, लोगों को नहीं सुनना चाहिए तुम्हारी आवाज. जब कहते हैं कि ऊंची आवाज उठाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर, ऊंची आवाज करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर. There is healing in worship. There is healing in worship. As this young man परेशान हो गया, I will lose my job.
मेरा नौकरी चला जाएगा, मैं कहीं का नहीं होगा, मैं गिरजाघर जाता हूं, मैं बचपन से मसीह हूं, मेरे बाप दादाओं ने मुझे सिखाया यीशु पर विश्वास रखने को, लेकिन आज परमेश्वर तूने इस मुल्क में मुझे लाया है और इतने सुंदर से नौकरी तूने मुझे दिया, मेरी प्रमोशन होने वाला है, लेकिन मैं कैसे कर सकूं जब मैं सुन नहीं पाता। और परमेश्वर के आगे गया, while worshiping, जैसे वो आराधना कर रहा था, उसको चंगाई मिला। आपको यदि डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में ये बीमारी है, ये तकलीफ है, द सीक्रेट इज दिस, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, गिव हिम थैंक्स। बीमारी में परमेश्वर को धन्यवाद देने को सीखो, जैसे सालास और पौलुस ने किया था। बंदीगृह में था, घाव से, वो मार से, पीड़ा में था, लेकिन उस पीड़ा में ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया। तो आप भी ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो, जो भी बंधन है वो बंधन टूट जाएगा। हालेलुया, और बंधन टूट जाएगा, बीमारी का बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से। The same God is not changed, वो बदला नहीं, वही परमेश्वर है। Years will change, people will change, but remember, Jesus will never change. Hebrews 13:8. Is same yesterday, today and forever. इतने दिल में रखो, मेरा यीशु नहीं बदलेगा, ना यीशु का वचन बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा, ना परमेश्वर बदलेगा। As you enter this new year, remember that Lord is with you. अभी मैं फिनिश कर दूंगा। The Lord is with you. We need to trust God with unknown challenge and blessing ahead of us. We need to trust God with unknown challenges and blessing that is ahead of us. Step into new year with God's guidance. The blessings are there. परमेश्वर का आशीष वहां पर है। Step out in faith for challenges and also for blessing. सभी कुछ के लिए तू स्टेप आउट हो और कहो कि मैं तैयार हूं। No matter what is there, the unknown, ये साल भर जो है हमारे लिए unknown है, we don't know what is going to happen, but there is unknown challenges and there is unknown blessings, and God has got a better plan for you. God has got a future for you. Step out, my dear brothers and sisters, in this new year. When God called Abraham, जब परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 12 में जब अब्राहम को पुकारा, कहां से पुकारा? उसके लोगों में से, और उससे कहा अब्राहम निकलो, कुछ भी नहीं लो, लीव दैट किंड्रेड, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़कर निकलो, मैं तुम्हें एक नया जगह लेकर जाता हूं। अब्राहम स्टेप्ड आउट टू द अननोन। वो नहीं जानता था, यहाँ अपने बाप के घर को छोड़कर, अपना जमीन जजात को छोड़कर, सभी कुछ को छोड़कर, धन दौलत, जो भी उसका फ्यूचर था उसके बाप के घर में, वो सब छोड़कर अब परमेश्वर की आवाज सुनकर वो विश्वास से निकला। समय नहीं रहने के कारण मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब्राहम is the father of Isaac, father of Ishmael, and through Isaac, David, and Jesus came from that line. And Abraham has been the richest person and the blessed person ever lived in this planet Earth. And the Bible tells us, when we'll step out in faith, सब कुछ को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, जो कुछ देखिए उसको छोड़कर हम देखी में निकलते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में रहेगा। And we will be blessed with Abraham's blessing.
As we leave this place, let us go with Abraham's blessing. Lord, as you have blessed Abraham, you are going to bless us because we are the spiritual children of Abraham. Amen? We are the spiritual, आत्मिक बच्चे हैं हम, आत्मिक बच्चे हैं. As Jesus came from that line, and he's telling us, my children, you are blessed. If you believe Jesus Christ with all your heart, without any doubt, this year will be a year of blessing in your life. Such a blessing. I'm so grateful. Pastor Chris will just come and pray and say the benediction. Thank you, Pastor. Hallelujah. Let us all pray together. Hallelujah. Father God in heaven, we bless you this day that we have come into your holy presence. We thank you for the word that has been shared. We pray, O God, that your Holy Spirit minister to each and every one of us, O God. Like Abraham, we will look unto the Lord God Almighty. And we say, this is the day the Lord has made. We will rejoice and we will be glad in it. Bless us together, O Lord, that Jesus Christ be lifted up and glorified in our lives. We pray, O God, that this year you will help us to take up our cross and follow you all the days of our life. And as we go through this journey, O God, you will keep us and guide us and lead us. And to you will give all the praise, the honor, and glory. For this blessing we ask in Jesus' precious name. And now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and remain with us now and forevermore. Amen.